All right. So hi guys, welcome to this particular session. In this session, what we are going to do is 2023 जो भी हमारा intermediate MME का paper था, we are going to discuss a few questions from this. So it's going to be a series wherein we'll be discussing 2023 papers for your semester 2 as well as semester 4. So semester 2 में you have intermediate MME and intermediate statistics and introductory macro courses. So all those papers we are going to discuss in detail. Okay. So today we are going to start with the 2023, which was exactly the syllabus that you have. उसके basis पे जो अपना paper था, उसके questions we are going to start discussing. So this is your intermediate MME paper. उसके कुछ questions जो है हम लोग discuss करेंगे. ठीक है. So all right, let me start sharing my screen. Okay, so this is basically this particular paper, and I've just so this was uploaded from Maitri College's website. It has 2023 का जो latest paper था आपका intermediate MME का, that we have uploaded from there. I mean, we've downloaded from there. If you wish, you can do that. I will also link the past paper कहाँ से आप access कर सकते हो if you wish to get that. Along with that, so we are picking up questions from here, this particular paper. So starting में जो है, let's start with first question here. So this is 2023 intermediate MME paper. So let's start reading this question and let's see what is supposed to be done here. So पहले question समझते हैं अच्छे से और फिर क्या करना है कैसे करना है. Let's see. Okay. So what is happening here? This is question number 1. Overall, this first question is for 8 marks, 4 marks, and 4 marks. Okay. So, okay, let's read it. Now, there is a firm. A firm sells 2 brands X, and this firm sells 2 brands X and 7 of a soap. Okay, I think it should not be 7. It should be Y because that really doesn't make sense. 7 here. The output and prices are denoted by X, Y, and P, comma, Q respectively. So basically there are 2 brands, brand X and brand Y of a particular soap. ठीक है. तो गुड X जो फर्स्ट ब्रांड है उसकी कितनी क्वांटिटी कितना आउटपुट आपने सेल किया वो X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दूसरे जो सोप था उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई इसको Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली द आउटपुट एंड इनके जो प्राइसेस हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एंड Q से. ठीक है. So that is one thing which is given to us. Then the question is the demand function of the 2 brands. ये जो 2 brands हैं इनकी demand function दी हुई है और demand क्या है? X is equals to 100 minus 2 times P plus 5 times Q. Okay, so this is one thing. And the demand for Y is equals to 80 plus 4 times P minus 3 times Q. So एक तरीके से हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि गुड एक्स जो कि सोप है, सोप ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके खुद के प्राइस पे तो डिपेंड कर ही रहा है लेकिन दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे भी डिपेंड कर रहा है. सो दूसरे ब्रांड का जो सोप है वो उसका क्या प्राइस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है. एंड विच इज एक्चुअली हाउ थिंग्स आर, राइट. एंड ये भी इसी तरीके से इसके खुद के प्राइस पे भी डिपेंडेंट है और दूसरा जो ब्रांड का सोप है उसके प्राइस पे भी डिपेंडेंट है. सो ये इनकी डिमांड दी हुई है. ठीक है. दैट इज वन थिंग. उसके अलावा सपोज ब्रांड एक्स सेल्स फॉर ₹15 पर यूनिट. तो अब इन्होंने ब्रांड एक्स सेल्स फॉर 15 पर यूनिट मतलब इन्होंने पी की वैल्यू इधर हमें बता दी विच इज 15 पर यूनिट एंड यहाँ पे क्यू की वैल्यू बता दी है. वाई ब्रांड जो है उसका सोप जो है इट सेल्स फॉर 12 पर यूनिट. सो ये एक्चुअली मुझे पी और क्यू इन दोनों की वैल्यू बता दी गई है. ठीक है. सो आफ्टर दैट नाउ कैलकुलेट
the total revenue of the firm. Now you have to calculate the total revenue of the firm. Total revenue of the firm. So total revenue of the firm. So revenue actually कैसे होगा? ये एक ही फर्म जो है ये दोनों ब्रांड बना रही है, राइट? देयर इज वन फर्म विच इज सेलिंग टू ब्रांड. सो टोटल रेवेन्यू जो है आपको निकालना है. सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई और इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, राइट? सो आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो? प्राइस टाइम्स आपने गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी सेल करी प्लस क्यू टाइम्स आपने गुड वाई की कितनी क्वांटिटी सेल करी, राइट? सो दैट इज वन थिंग. अब यहाँ पे आपको पी की वैल्यू दे दी गई है तो, और क्यू की वैल्यू भी दे दी गई है तो आप उससे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. सिमिलरली आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो. सो यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई, एंड देन यू हैव पी, एंड देन यू हैव क्यू. सो यू कैन एक्चुअली नाउ मल्टीप्लाई थिंग्स. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ पे हमें क्या करना है? मैं इसका जो रेवेन्यू फंक्शन है उसको अगर क्लियरली लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? रेवेन्यू. अब इसमें आपके पास सिर्फ P एंड Q बच जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे P हो गया, X की वैल्यू क्या हो गई? 100 माइनस 2 टाइम्स P प्लस 5Q प्लस Q, और इधर Y की वैल्यू हो गई 80 प्लस 4 टाइम्स P माइनस 3 टाइम्स Q. ठीक है, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन हो गया. अब रेवेन्यू नाउ एंटायरली इज इन टर्म्स ऑफ P एंड Q. ओके, सो यहाँ पे रेवेन्यू हो गया. इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आगे की कैलकुलेशंस जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे. सो दिस इज 100 टाइम्स P माइनस 2P स्क्वायर्ड प्लस 5PQ प्लस 80Q प्लस 4PQ minus 3Q squared. This is my equation. So what is going to happen now? I think my screen has frozen. Okay. All right, so now what is happening here? So this is my entire equation. अब इसको थोड़ा सा simplify कर सकते हैं. This is 100P and then 80Q and then minus 2P squared minus 3Q squared and then 5PQ and then 4PQ which is 9PQ. तो ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन हो गया है. ठीक है, पहली चीज उन्होंने जो हमें निकालने को बोली है कि फाइंड द रेवेन्यू ऑफ दिस फर्म व्हेन P वैल्यू इज 15 एंड Q वैल्यू इज 12. सो बेसिकली एक चीज आपको क्या करनी है? R ऑफ 15, 12 ये निकालना है. This is the first thing that you have to figure out. ठीक है, I think there should be no problem in doing this. You can simply substitute these values. ठीक है, P की वैल्यू 15, Q की वैल्यू 12. That is first part. उसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है कि now please estimate the approximate change in revenue if the price are increased by 1 per unit for X and 1.5 per unit for Y. So अगर price of X 1 यूनिट से इंक्रीज होता है और प्राइस ऑफ Y जो है वो 1.5 यूनिट से इंक्रीज होता है तो जो रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आएगा. ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल्स हियर. जैसे यहाँ पे DR जो है डिफरेंशियल ऑफ R वो क्या होगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल डू R प्राइम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो R1, R प्राइम 1 P कॉमा Q टाइम्स D ऑफ P. ठीक है, प्लस R प्राइम 2 P कॉमा Q D ऑफ Q. सो बेसिकली ये तो डिफरेंशियल हो गया. ठीक है, अब मुझे अगर अप्रोक्सीमेटली ये जो डिफरेंशियल होता है ये अप्रोक्सीमेटली चेंज इन रेवेन्यू के बराबर ही होगा अगर ये जो चेंजेस हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, राइट? तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली दिस चेंज इन रेवेन्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? This expression times this change in price and then this expression times change in price for good Y. This is what we have. ठीक है,
तो एक चीज हो गई हमारे पास ये। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फिगर आउट द डेरिवेटिव नाउ, ठीक है। तो ये जो चेंज इन रेवेन्यू है, पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिगर आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू, एंड दीज चेंजेस आर ऑलरेडी बीन कोटेड टू यू कि आपका चेंज इन पी जो है वो 1 यूनिट है एंड योर चेंज इन वाई इज 1.5 यूनिट, ठीक है। सो दिस यू नो, यू जस्ट हैव टू डू दिस, ये आपको निकालना है। सो व्हाट इज r prime p comma q with respect to 1, basically with respect to p। तो आपको ये जो रेवेन्यू है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल विच इज p। तो विद रिस्पेक्ट टू p अगर करोगे तो वो क्या होगा, इधर फर्स्ट यू विल गेट 100, एंड जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो रेस्ट एवरीथिंग इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो q वाली चीज एक पूरी कांस्टेंट हो गई तो वो गायब हो जाएगा, and then here you will have -2 and then 2 will come in front, so basically -4 times p, -4 times p, ठीक है, this is one thing, and then q is constant, and then this is 9pq, I have to differentiate it with respect to p, so I will be left with 9q, so ये इधर हो गया प्लस 9q। तो ये मेरा पहला डेरिवेटिव हो गया, एंड बाय फॉलोइंग द सेम लॉजिक, ये सेम लॉजिक अगर मैं यूज करती हूँ तो अब इससे जो है आई कैन फिगर आउट व्हाट इज आर प्राइम टू पी क्यू। ये क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट करना है। सो क्यू डिफरेंशिएट करोगे तो पी विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो दिस इज 0 एंड देन दिस इज 80। सो मेरे पास क्या हो जाएगा इधर, I will be left with 80 and then this is P, पूरा चीज constant है तो वो 0 हो जाएगा, and then we will be left with -6Q and then this is 9PQ. I have to differentiate with respect to Q, so I'll be left with 9P. So plus 9P, ठीक है। तो ये मेरी पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, ये मेरे पार्शियल डेरिवेटिव वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो अगर मुझे अभी निकालना है कि मेरा चेंज इन आर, मेरा चेंज इन रेवेन्यू क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे जो पी और क्यू वैल्यू लिखनी है, ये कौन सी वैल्यू होगी जो आपने स्टार्टिंग में यूज करी हुई है। सो बेसिकली आपको ये अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालना है, आर प्राइम 1, पी की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 15, क्यू की वैल्यू थी 12, सो 15 कॉमा 12 एंड देन दिस इज चेंज इन पी। सो माई पी हैज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, माई क्यू हैज इंक्रीज बाय 1.5 यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कितना करोगे, 1 यूनिट प्लस दिस इज आर टू 15, 12 एंड देन दिस इज चेंज इन क्यू विच इज 1.5 यूनिट्स, ये अपना 1.5 यूनिट्स होगा, ठीक है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर ये पी और क्यू की वैल्यू यूज करके आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, इस फंक्शन के अंदर ये पी और क्यू वैल्यू पुट करके आपका ये फंक्शन आ जाएगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन। सो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द चेंज इन रेवेन्यू, सॉरी, दैट विल बी द चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू, दैट विल बी माय अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है। सो ये मेरा अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू है, ठीक है। सो ये तो हो गया एक पार्ट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कंपेयर इट विद द एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू। अब ये जो आपने अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू बताया उसको कंपेयर करो विद व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू। तो एक्चुअली में रेवेन्यू असली में कितना बदला और आपने अप्रोक्सीमेशन करके जो आंसर बताया उन दोनों को कंपेयर करना है। तो बेसिकली व्हाट आर दे आस्किंग कि इनिशियल सिचुएशन क्या थी कि आपकी पी और क्यू वैल्यू जो थी वो कितनी थी 15, 12, गुड एक्स के लिए प्राइस था 15 और वाई के लिए प्राइस था 12। फिर सिचुएशन जब बदली उसके बाद आपने क्या बोला, जो चेंज इन गुड एक्स का प्राइस है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो गया एंड जो गुड वाई है वो 1.5 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो अब जो नया मान लो प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई है, पी प्राइम एंड क्यू प्राइम, लेट्स से न्यू चेंज्ड प्राइस वो कितना हो गया, पहले 15 था, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो 16, एंड क्यू जो है वो पहले 12 था अब 1.5 इंक्रीज हुआ है, सो ये एक्चुअली कितना हो गया 13.5। तो अब आपको बताने की इस सिचुएशन में जो रेवेन्यू था और जो इस सिचुएशन में रेवेन्यू था उन दोनों के बीच में चेंज क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे रेवेन्यू 16, 13.5 ये, एंड दिस इज रेवेन्यू 15, 12, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, सो एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू,
Actual change in revenue. What is the actual change in revenue? This is simply this R16, 13.5 minus R15, 12. So this is what you have to do. ये आपका एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू है, ये आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू है यूजिंग द आइडिया ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल्स. ठीक है. So this is what you have to do. I'm not doing the calculations. I would leave it for you to do it. I've explained you how you have to do it. And if you would like, you can comment the answers and you guys can check amongst yourself the exact numbers as well. Okay. So that is another thing. And that is how you have to do this. So this is part A of question number 1. Okay. So I hope this is clear. And now let's move on to the second part. So there were multiple possibilities in how we can go about it. We can either bifurcate it topic wise, chapter wise, but once people are a little aware of all the concepts, and then they start picking up the questions of past years ek hi saath. So that's why we are doing the things questions wise. Okay, and I think that works well. So you can watch it or maybe see it all together for 2023 in one seating. Okay, we might be doing it question by question, but you can watch it together. All right, so let's move on to the second part, part B of first question. So first question, part B. ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन समझते हैं. फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट फाइंड द डोमेन. तो पहले तो आपको डोमेन निकालनी है, और डोमेन निकालने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लॉट इट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए आपको डोमेन बतानी है. ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट द डोमेन. पहली बात तो डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन का मतलब वो सारे पॉइंट्स हैं आपके जो आप इनपुट कर सकते हो, जिससे आपका जो आंसर है इस फंक्शन के लिए एक वैलिड आंसर आएगा. ठीक है, सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड हियर. अब यहाँ पे जो आपके इनपुट है वो क्या है? एक्स एंड वाई. ठीक है, तो बेसिकली ये जो जेड फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई. तो डोमेन एक्चुअली क्या है? वो अलग अलग एक्स कॉमा वाई पेयर्स विच when you use inside the function, they will give you some meaningful value. ये आपको कोई meaningful value निकाल के देंगे. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज है जो आपको मीनिंगफुल आंसर देंगी. तो जब भी आपको डोमेन निकालनी होती है, आपको ये सोचना होता है कि क्या चीज पॉसिबल नहीं है. तो अब देखो, ये जो फंक्शन है इसमें क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है. तो हमें एक चीज पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. राइट, नेगेटिव होके फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं. तो हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर ये जो एक्स प्लस वाई है, ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. सो इट हैज टू बी पॉजिटिव. ठीक है, सो एक्स प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन, और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं, 1/समथिंग 0 नहीं हो सकता. तो इसीलिए आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, दिस इज अलाउड, 0 इट कैन बी देयर. ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज वन थिंग. ये तो एक कंडीशन हो गई. ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे भी तो ये एक्स माइनस 3 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये चीज भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो मुझे दूसरी कंडीशन जो है वो कहाँ से मिली कि ये जो एक्स माइनस 3 है, this also has to be greater than or equal to 0. ठीक है, so this is another thing. तो बस यही है आपकी डोमेन, कि वो x, y के पेयर्स जो इस कंडीशन को भी एंड इस कंडीशन को भी एंड दोनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए. क्योंकि सिर्फ एक हुई दूसरी नहीं हुई तो फिर दूसरा स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होगा. सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि बोथ दीज थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. तो आपको ये भी चाहिए कि भाई एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ये जो एक्स माइनस 3 है दैट ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? पहली चीज, इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, मतलब इट्स अप टू यू एंड नॉट इवन नॉट नीडेड लाइक दैट. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स. तो ये एक तरीका हो सकता है इसको लिखने का. और ये तरीका जो है, एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3.
ठीक है, ये आपकी क्या हो गई कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो इसको और इसको इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ द डोमेन. एंड देन द सेकेंड थिंग दैट देव आस्क्ड यू इज यू हैव टू प्लॉट दिस. तो प्लॉट दिस का मतलब कि डोमेन क्या है उस चीज को प्लॉट करना है. तो बेसिकली आपको इसको एंड इसको जो इन दोनों का कॉमन एरिया होगा उसको यूज करना है. तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, सिंपली एक काम करो, एक अपनी एक्स वाई एक्सिस बनाओ. ठीक है, एक आपने अपनी एक्स वाई एक्सिस बनाई. ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. पहली चीज आपने क्या बोला, एक्स की वैल्यू 3. तो मान लो एक्स की वैल्यू 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू 3. तो एक्स की वैल्यू हमने 3 फिक्स कर दी. ठीक है, अब आपने क्या बोला, एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए. तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि 3 या 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. तो ये एरिया आपके लिए रेलेवेंट है. ठीक है, ये एरिया एक रेलेवेंट हो गया. दूसरी चीज आपने क्या बोला, y ग्रेटर देन इक्वल टू -x. तो जब भी आपको इनइक्वालिटी प्लॉट करनी होती है तो आप सिंपली पहले क्या करना होता है, y इज इक्वल टू -x, इसको प्लॉट करो. और फिर इससे जो है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उससे हमारा जो पूरा एक्सिस है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फिर सोचो कि आपके लिए जो रेलेवेंट हिस्सा है वो कौन सा है. तो पहले आप y इज इक्वल टू -x को अगर प्लॉट करोगे तो ये चीज जो है ये क्या है, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, 0 0 विच इज गोइंग टू पास थ्रू दी ओरिजिन. ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी. जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी. जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू -3 होगी. सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. या तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से होगी. ठीक है, ये लाइन तो हमने बना दी. तो ये एक नेगेटिवली स्लोप लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. नेगेटिवली स्लोप बिकॉज यहाँ पे जो x के आगे कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है. ठीक है, अच्छा ये तो हमने बना दिया. अब इसके बाद मेरे लिए जो रेलेवेंट एरिया है वो कौन सा है. तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 0 0 पुट करके देखते हैं जो भी इक्वेशन प्लॉट करनी होती है, और उसमें अगर हम लोगों की स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो वी मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स हो रहा है तो देन वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अब यहाँ पे ये तो ओरिजिन से पास होती है. तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो कि ये जो दो हिस्से हैं, ये जो हमारे दो हिस्से हैं, हमारे दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है. ये दो हिस्से हैं, इसमें से मान लो कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया आपने, पिक वन पॉइंट. एंड ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन में पुट करके आंसर ट्रू आ रहा है तो आप इस तरफ मूव करोगे, और अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो आप इस तरफ मूव करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, तो जब यहाँ पे आप वाई की वैल्यू 0 एंड एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट. Yes, 0 is greater than -1. So this is a true statement. So that means we will be moving towards this region. ये हमारे लिए region relevant होगा. मतलब region that will be relevant for me is this. ठीक है, and because यहाँ पे ये equal है तो मुझे ये वाली line को भी include करना है. So I will also be including this particular line. ठीक है, ये वाली line भी मुझे include करनी है. तो अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. तो मेरे लिए कॉमन एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये इसका भी हिस्सा बनेगा और फिर ये वाला है एरिया. तो मेरे लिए ये एरिया और ये एरिया चाहिए था मुझे टुवर्ड्स दिस साइड एंड टुवर्ड्स दिस साइड. तो जो कॉमन एरिया है वो एक्चुअली कौन सा बनेगा, दिस एरिया, ये वाला एरिया एंड देन दिस इंटायर एरिया. तो मेरे लिए जो रेलेवेंट मेरी डोमेन होगी वो ये है जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय कॉमन एरिया. ठीक है, अब आप आराम से ये वाला जो एरिया है उसको इरेज कर सकते हो. ये जो हमारा ये एरिया है, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस. द ओनली थिंग विच इज रेलेवेंट फॉर अस इज दिस. ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो बस हमने इसको हटा दिया. ठीक है, यू कैन रिमूव दिस and then you can also remove these things. Yeah, okay. So this is the area which is relevant for us. This
एरिया, ठीक है। तो ये हमने अपनी डोमेन प्लॉट कर दी है, फाइन। सो x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस शुड आल्सो बी सैटिस्फाइड, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -x। तो इसमें आपने y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 जब पुट करी तो हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आई, ठीक है। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, so basically we'll be moving towards this region and that's why this is the common area, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इस चीज को प्लॉट करना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज फाइन, यू अंडरस्टूड इट हाउ टू डू इट। So I will see you guys in the next short video and we'll do problem number 2. Okay, so we'll keep continuing this in that case. All right. In case you have any doubts in this, you can post it in the comment box, and I would really appreciate it if you could solve and try to do these things amongst each other. Okay. All right. Thank you. Take care. Have a good day.